Hello, everybody. This is Abhilasha Nata, your living science teacher from Layal Public School. So, students, today we are going to start our second chapter of your Living Values book, that is Importance of Faith. So, before starting this chapter, we will start the chapter by seeing a little video. So, start. Faith is kind of like making a painting. You don't see your painting at first, but you believe you can make a painting. You just know it. So you get a little paint on your brush and put it on the paper. Then you get a little more paint on your brush and put it on the paper. And after a while, the painting is there. Now you can see it. That's kind of how faith works. Faith is also like baking cookies. You don't see the cookies at first. You can't smell them yet, and you can't taste them yet. But you have a recipe, and you believe you can bake some cookies. You just know it. So you mix the ingredients together, and you put the cookies on a cookie sheet, and you put them in the oven. And after a while, the cookies are done. Now you can see them, now you can smell them, and now you can eat them. That's kind of how faith works. Faith is also like planting a garden. You don't see any pumpkins at first, and you don't see any watermelon or tomatoes, but you have seeds, and you believe that the seeds will grow. You just know it. So you plant the seeds, and you water the seeds, and after a while, you have a beautiful garden. Now you can see the watermelon. Now you can see the pumpkins. Now you can see the tomatoes. That's kind of how faith works. Faith is also like building a house. You don't see your house at first, but you have a plan, and you believe you can build a house. You just know it. So you start building the walls, and you build the roof, and you put in the windows, and you work real hard for a long time. And after a while, the house is there. Now you can see it. That's kind of how faith works. Noah showed faith when he built the ark to save his family and all of the animals. God told him it was going to rain and there was going to be a great flood. Noah believed Heavenly Father, and he believed he could build the ark in time. He just knew it. So he started working, and he kept working for a long time. And after a while, the ark was there. Now he could see it. That's kind of how faith works. The most important kind of faith is having faith in Jesus Christ. We don't see him right now, but prophets in the scriptures have told us all about him. If we believe in him, we can learn about him, we can follow him, and we can get closer to him every day. And after a while, we'll have a testimony that he is our Savior and that he really loves us. Then we'll know. Then we'll see. But we have to have faith first. That's kind of how faith works. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में, अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो उससे
कोई भी चीज बनानी है, कोई भी चीज हमें चाहिए, या फिर कोई भी हमें फीलिंग डेवलप करनी है, उससे पहले हमें फेथ होना जरूरी है। फेथ इन एट लास्ट हमने वीडियो में देखा कि जो हमें जीसस पे जीसस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, आप उस पे क्या करें, हमें फेथ होना चाहिए, विश्वास। फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास, ट्रस्ट, बिलीफ। ओके, सो जीसस इज जस्ट एक एग्जाम्पल है। जस्ट लाइक दैट नेचर क्या है? गॉड नेचर ही है। चाहे आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, इस्लाम आप फॉलो करते हो, या कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, तो वी हैव फेथ इन आवर गॉड। जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, उस पे हमें फेथ होना चाहिए। सो इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ। फेथ, ट्रस्ट होना, बिलीव करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वी विल read this chapter, and after reading this chapter you will get to know why faith is important in our life and what crucial role faith plays in our life. The following are the opening lines of a famous old song. There is hey, have faith, hope and charity. The Lord will bless and guide you, whether near or far away. Have faith means हमें ट्रस्ट, फेथ का मतलब क्या होता है? बिलीफ। ठीक है, हम व्हेन वी हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन समवन, ठीक है, कंप्लीट ट्रस्ट। फेथ रखो, होप रखो, हमें होप रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ये काम नहीं होगा, हमें हमेशा ये सोचते रहना चाहिए। अगर आपने कोई भी काम के बारे में सोचा है, उस पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो हमें हमेशा बिलीव रखना चाहिए कि नहीं, ये वर्क होके रहेगा। सो होप एंड चैरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरिटी? चैरिटी मीन्स donations. Have faith, hope and charity. The Lord will bless and guide you. जो भगवान है, आप जिस भी गॉड को मानते हो, जो भगवान है हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हमें देगा और हमें हमेशा गाइड करता रहेगा, किसी ना किसी तरीके से, किसी की हेल्प के थ्रू, या किसी ना किसी जरिए से वो हमें क्या करेगा? गाइड करेगा। वेदर नियर और फार अवे, चाहे वो हमारे पास में है, चाहे हमें वो नहीं दिखते हैं, ठीक है, वो बहुत दूर हैं, बट पर वो हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स क्या है? सेंड करता रहेगा और हमेशा हमें गाइड करेगा। So these are some of the lines about faith. Okay, now three important virtues we should possess to get God's blessing are faith, hope, and charity. Of these three, the first one is faith. Three important virtues. What is the meaning of virtues? Virtues means गुड बिहेवियर, और आप जो बोलते हो गुण, ठीक है, आप बोलते हो ना क्या गुण है इसमें, कि आपके के अंदर क्या गुण है, दैट इज वर्च्यू, गुड बिहेवियर। सिनोनिम ऑफ वर्च्यू इज गुड बिहेवियर। थ्री इंपॉर्टेंट वर्च्यूज है क्या? तीन इंपॉर्टेंट गुण है आप जो गॉड बोलता है कि होनी चाहिए हमारे अंदर। क्या क्या है वो? गॉड ब्लेसिंग्स जो गॉड हमें देता है वो है फेथ, hope and charity. First one is faith, second one is hope, and third one is charity, that is donation. Of these three, the first one is faith. और इन तीनों में से पहला कौन सा है? faith. ठीक है, now what is faith? Faith is complete trust. What is faith? Faith is complete trust. इसी पे पूरा हम क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। इट इज अनक्वेश्चनिंग कॉन्फिडेंस। हम जब किसी से कोई क्वेश्चन किए बिना हमें किसी पे बिलीव होता है, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्रेंड्स पे आप बोलते हो ना, मुझे इस पे पूरा भरोसा है, दैट इज आपको क्या है? उस पे फेथ है। बहुत सारे लोगों को ऐसे गॉड पे होता है कि गॉड हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं भगवान पे पूरा भरोसा रखता हूँ या भगवान पे पूरा भरोसा रखती हूँ। सो व्हाट इज दैट? दैट इज कंप्लीट ट्रस्ट एंड दैट इज अनक्वेश्चनिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, फेथ इन गॉड कम्स फर्स्ट। गॉड पे, गॉड in either form, either in the form of Allah, either in the form of Jesus, either in the form of Lord Rama, Lord Krishna, Lord Ganesha, either in the form of Bhagwan Mahavir, etc. Anything, God
these all are ये सारे जरिया हैं, हम गॉड के अलग अलग नेम्स हैं, बट गॉड तो वन ही है, गॉड तो एक ही है। हमें गॉड पे ट्रस्ट करना, गॉड पे फेथ रखना, जो फेथ में गॉड आता है, गॉड कहाँ पे आता है? फर्स्ट प्लेस पे आते हैं। वी बिलीव दैट गॉड इज आवर फादर। हम बिलीव करते हैं गॉड हमारे फादर हैं। फादर इन फादर हमारी फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, गार्जियन होते हैं हमारी फैमिली के। तो वी बिलीव दैट गॉड इज आवर फादर, ठीक है। जैसे कि हमारे फादर जो है हर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें हमेशा हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ चलाने में हेल्प करते हैं, हमारी मुश्किलों में हमारे साथ रहते हैं। जस्ट लाइक दैट गॉड भी कौन है? गॉड भी हमारे फादर है। वी बिलीव दैट गॉड इज ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग एंड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हम क्या बिलीव करते हैं? गॉड सबसे पावरफुल कौन है? गॉड है, उसे सब पता है और वो हर जगह प्रेजेंट है। दिस बिलीफ शुड गिव अस अनक्वेश्चनिंग कॉन्फिडेंस इन गॉड। ये जो बिलीफ है हमारा गॉड पे कि गॉड पावरफुल है, गॉड सब जानता है, गॉड हमारे हर जगह गॉड है, और उस पे जब हम कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं उसके एग्जिस्टेंस पे, उस तो दिस बिलीफ शुड गिव अस अनक्वेश्चनिंग कॉन्फिडेंस इन गॉड। ये जो बिलीफ है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं? कि हम गॉड पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ लिटिल स्टोरी अबाउट लिटिल तान्या. Little Tanya was 7 years old. She was studying in class 2 in a very good school. On her father's birthday, several of their relations and friends had come to their house. After the birthday song, the father picked up his daughter and kissed her. In front of all the guests, the father announced that Tanya, his only daughter, was a future doctor. Immediately, to his surprise, Tanya shouted, "No, Daddy, no, I don't want to be a doctor." The surprised father put her down and asked her, "Why, Tanya, what do you want to be?" Several guests said, "Tell us what you want to be." Now this is a little paragraph. Little Tanya एक छोटी सी बच्ची है, तान्या, जो 7 years की है। वो क्लास सेकंड में पढ़ती है, बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती है। उसके फादर के बर्थडे के दिन बहुत से उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उनके घर पे आए थे। केक कट हुआ। बर्थडे सॉन्ग के बाद उन्होंने फादर ने अपनी बेटी लिटिल तान्या को अपनी गोदी में उठाया और किस किया, ठीक है, उसे प्यार किया। और सभी गेस्ट के सामने फादर ने बोला, दैट फादर अनाउंस दैट तान्या, जो उनकी इकलौती बेटी है, वो फ्यूचर डॉक्टर, वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगी। तो वैसे ही इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही तान्या जो है शाउट करके बोलती है, नहीं नहीं पापा, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। तो फादर ने पूछा, उसे नीचे उतारा और पूछा, क्यों, क्या हुआ, तो तुम क्या बनना चाहती हो? और बहुत से गेस्ट ने भी पूछा, हमें भी बताओ कि तुम क्या बनना चाहती हो। So this is little Tanya, her mother, and this is a line. So देखते हैं little Tanya क्या बनना चाहती है। They expected everyone who everyone, his father, her father, her mother, and the guests. They expected her to say that she wanted to become an engineer, an air hostess, a lawyer, or a teacher. To the surprise of all, she replied, "I want to become a lion tamer." Her mother was shocked, and so was her father. They explained to her that it was a dangerous job and that the lions would kill her. She would have to be alone with the lions. नाउ सबने पूछा, सब बहुत ज्यादा सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तान्या आंसर करेगी कि मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, लॉयर बनना है, जो ये आपके बहुत से कॉमन जो आपके प्रोफेशंस हैं, ये यही सारे सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे इनमें से कुछ बोलेगी। बट
To the surprise of all, she replied, उसने क्या रिप्लाई किया? I want to become a lion tamer. Lion tamer क्या होता है? मैं शेर को पालना चाहती हूँ, शेर को कंट्रोल करना चाहती हूँ. ठीक है? So her mother was shocked. उसकी मदर शॉक्ड थी, उसके फादर शॉक्ड थे. ठीक है? उन्होंने उससे एक्सप्लेन किया, उसे बताया कि लायन को टेम करना, लायन को पालना बहुत ही डेंजरस जॉब है. लायन जो है, शेर जो है, आपको मार भी सकता है और आपको हमेशा लायंस के साथ में, शेर के साथ में क्या रहना पड़ेगा? अकेला रहना पड़ेगा. Immediately the child said, I will not be alone. My mother will be with me. With my mother by my side, no lion can harm me. This is what we call faith. This is the faith a child has in her mother. How much more faith should we have in God, our Father? So, तान्या जो है वो बोलती है, मैं अकेली नहीं रहूंगी, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ में रहेगी. ठीक है? तो अगर मेरी मम्मी मेरे साथ रहेगी तो कोई भी लायन मुझे हार्म नहीं कर सकता, मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता. और ये जो ट्रस्ट है लिटिल तान्या का जो ट्रस्ट है अपनी मम्मी पे, कि मेरी मम्मी अगर मेरे साथ में है तो मुझे कोई भी शेर हार्म नहीं कर सकता, कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, इसी ट्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फेथ. ठीक है? दिस इज द फेथ अ चाइल्ड हैज इन हर मदर. ये ऐसा फेथ है, ये जो एक बच्चा अपनी मदर पे एक फेथ रखता है, ट्रस्ट करता है. आप सब ने भी देखा होगा, आपके घर पे कोई बहुत छोटा बच्चा होता है, जस्ट बॉर्न 1 ईयर का है या फिर 6 मंथ्स का है, तो जब उसको, जैसा एक छोटे बच्चे को अपनी मदर पे, अपने फादर पे पूरा ट्रस्ट होता है. आपने अपने घर पे देखा होगा, कोई छोटा बच्चा है, उसको ऐसे हवा पे उछालते हैं या फिर गोदी लेते हैं तो उसको पूरा ट्रस्ट होता है. वो कोई सपोर्ट नहीं रखता, बट उसे ट्रस्ट होता है कि वो हमें नहीं गिराएंगी, हमारी मदर, हमारे फादर. तो यही क्या है? फेथ है. सो हमें कितना फेथ रखना चाहिए अपने फादर पे, हमारे गॉड पे? The Bible says that if we have as much faith as the size of a mustard seed, we can move mountains. It shows the importance of faith. Yes, it is very true that faith works miracles. If God is with us, who can be against us? Bible, जो आपकी होली बुक है क्रिश्चियंस की, बाइबल कहती है कि अगर हम एक राई जितना भी ट्रस्ट, राई का दाना आप सबने देखा होगा, अगर राई के सीड के जितना भी अगर फेथ रखें हम गॉड पे, तो हम एक माउंटेन्स को भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. सो ये शो करता है, इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, कि फेथ कितना जरूरी है. कभी कभी जो फेथ है वो एकदम जादू की तरह काम करता है. अगर गॉड हमारे साथ में है तो हमारे अगेंस्ट में कौन बोल सकता है? हमारे अगेंस्ट में कोई भी क्या काम कर सकता है? Faith will give us the courage to face all kinds of obstacles. Faith will remove all fears from us and provide us complete security. फेथ हमें करेज मीन्स ब्रेवरी, फेथ हमें ब्रेव बनाता है. और जितने भी हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स का मतलब हर्डल्स होता है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, उन सबको क्या है? फेथ उन सबको फेस करने में हमें हिम्मत देता है, और जितना भी डर है हमारे अंदर उसे रिमूव करता है और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है. From faith in God, we move to faith in fellow beings. We must trust people. All transactions and dealings with others depend on the faith we have in them. Trust begets trust. If we trust them, they will trust us. Where there is no trust, no human relations can exist. तो अगर हम गॉड पे फेथ रखते हैं, गॉड पे फेथ रखने के बाद हम किस पे फेथ रखते हैं? हम अपने फेलो बींग्स पे. फेलो बींग्स जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स में रहते हैं, जैसे आपकी टीचर्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, उन सबको यहाँ पे फेलो बींग्स बोला गया है. हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, जितने भी हम
पैसे का लेन देन करते हैं, किसी से कोई सामान खरीदते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर आपका कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो आपने अपने एक फ्रेंड से नोटबुक ले ली, तो वो आपका जो फ्रेंड है आपको नोटबुक दे रहा है, वो किस बिलीफ पे दे रहा है? वो आप पे फेथ रखता है, वो ट्रस्ट करता है कि मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, ये मेरी नोटबुक को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो वो आपको क्या दे रहा है? अपनी नोटबुक दे रहा है वर्क करने के लिए। तो दिस इज ट्रस्ट। हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट। अगर हम ट्रस्ट करते हैं तो सामने वाला भी हमें हमारे पे ट्रस्ट करता है। वेयर देयर इज नो अगर वेयर देयर इज नो ट्रस्ट, अगर कहीं पे ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी ह्यूमन रिलेशंस जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस वर्ल्ड में। द लास्ट इन द फेथ वी शुड हैव इन आवरसेल्फ, we must have self confidence. While self confidence is good, overconfidence is bad. Self confidence should be the result of our belief that God, our Father, has given us several qualities and strengths. It is the belief that I can do everything with God on my side. The last is the faith we should have in ourselves. क्या होना चाहिए? हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड, खुद पे विश्वास होना अच्छी बात है, बट हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा, आप बहुत घमंडी हो चुके हो, आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्राइड, बहुत ज्यादा आपके अंदर प्राइड आ चुका है। सो ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या होता है? अगर हम गॉड पे बिलीफ रखते हैं और अपने आप पे बिलीफ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो गॉड की हेल्प से हम अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज और स्ट्रेंथ्स को डेवलप करते हैं और हमारे अंदर ये बिलीफ आता है कि अगर भगवान मेरे साथ है तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। Overconfidence is the result of pride. When one feels that one can do anything by oneself, it is nothing but pride. We must know that we are weak and helpless by ourselves. We become strong with God. Success, health, or wealth may make us proud and overconfident. That normally is the end of that person. We have examples of many kings, heroes, politicians, and others who have suddenly fallen from high pedestals. Their pride and overconfidence turned them into haughty and arrogant tyrants. Very soon they were deposed or laid down. It is because they failed to include God in their lives. ओवर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट क्या होता है? कि हम घमंडी बन जाते हैं और हमारे अंदर प्राइड आ जाता है। जब कोई एक इंसान ऐसा सोचता है कि मैं अपने आप सारी चीजें कर सकता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? घमंडी बोलते हैं, प्राइड ही बोलते हैं। वो इंसान जानता है कि वो अंदर से वीक है, हेल्पलेस है, बट वो क्या है, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो गॉड पे बिलीव नहीं करता। दैट्स व्हाई वो पर्सन क्या है, और ज्यादा वीक और हेल्पलेस होते जाता है। हम स्ट्रांग कब बन सकते हैं? अगर गॉड पे हम फेथ रखें, गॉड हमारे साथ होता है तो हम स्ट्रांग होते हैं। किसी पर्सन की अगर सक्सेस, उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो हेल्दी भी है, ठीक है, उसके पास सक्सेस भी है, तो वो ये सारी चीजें एक पर्सन को प्राउड, ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है। और ओवर कॉन्फिडेंट अगर किसी इंसान के अंदर आ जाता है, इसका मतलब होता है कि उस इंसान का जो एंड है जल्दी ही आने वाला है। हमने बहुत सी एग्जाम्पल्स और बहुत सी स्टोरीज पढ़ी है अबाउट किंग्स, हीरोज, पॉलिटिशियंस, जो एकदम से who have suddenly fallen from high pedestals. High pedestals क्या होते हैं? जब किसी सपोर्ट में, जब आप बहुत ही ऊंचे लेवल पे वो उनके पास सक्सेस होती है, ठीक है, बट एकदम से वो क्या है, उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, दैट्स व्हाई वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, हमने बहुत सी ऐसी किंग्स, हीरोज, पॉलिटिशियंस की कहानियां पढ़ी हैं जो एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी लाइफ जो होती है एंड हो जाता है उनकी लाइफ का। Their pride and overconfidence turned them into haughty and arrogant tyrants. Haughty का मतलब क्या होता है? Again, it is a synonym word for the word pride. And arrogant tyrants, जो बहुत ज्यादा घमंडी रूलर्स होते हैं, उनको arrogant tyrants बोलते हैं।
ठीक है। उनका जो प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस है उनको बहुत ज्यादा घमंडी बना देते हैं, घमंडी रूलर्स बना देते हैं। और बहुत ही जल्दी हमने देखा, बहुत सी स्टोरीज में देखा कि उनकी वेरी सून दे वर डिपोज। डिपोज मतलब उनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है, और उस जो लोग हैं उनको लीडरशिप से हटा देते हैं। सो ये क्यों होता है? बिकॉज उनकी लाइफ में क्या नहीं है, दे फेल टू इंक्लूड गॉड इन देयर लाइफ। उनकी लाइफ में गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, वो गॉड पे बिलीव नहीं करते। मार्टिन लूथर, एक बहुत ही फेमस राइटर है, मार्टिन लूथर, believed that faith alone was enough. In any case, faith is necessary, not mere blind faith, but faith based on reason, experience, and complete trust. Martin Luther, one of the finest author of our time, वो बोलते हैं कि फेथ होना, खाली फेथ होना ही बहुत जरूरी है। अगर हम फेथ रखते हैं, दैट इज इनफ फॉर आवर लाइफ। फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ब्लाइंड, किसी पे आंख बंद करके भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। फेथ हो बट रीजन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और ट्रस्ट के साथ, ठीक है, वैसा फेथ काम आता है। Nothing is impossible with faith in God. He is our Father and Lord. Let us have the faith that a child has in his mother. Let us have the faith that a patient has in his doctor. Let us have the faith that a creature should have in his creator. This will help us to lead a happy, successful, and useful life. भगवान, अगर हम भगवान पे भरोसा रखते हैं तो कोई भी चीज क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान ही हमारे फादर हैं, हमारे लॉर्ड हैं। सो हम सबको ऐसा फेथ रखना चाहिए जो एक बच्चे को अपनी माँ पे होता है, एक पेशेंट को अपने डॉक्टर पे होता है, और एक क्रिएचर को क्रिएटर पे होता है। जिससे कि हमें क्या मिलेगी, हमें एक बहुत ही खुशी और बहुत ही हैप्पी, सक्सेसफुल और यूजफुल लाइफ जो है लीड करने के लिए मिलेगी। So this is all about our chapter Importance of Faith. I hope you all understood this chapter very carefully. Please read the chapter very carefully, and I will send you the PDF of this chapter. Please complete your chapter in your book itself, and that is all about today. Thank you for joining the class.